وارحمنا ربنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا واغفر لنا انوائٹ کروں گا ہمارے پرنسپل سر مسٹر غلام محمد خان کہ آپ کا اس پہ تشریف رکھ کے اپنا پیش کریں. مسٹر غلام محمد خان سوسائٹی کارگل جناب ناصر شاہوانی صاحب، وائس چانسلر جناب محمد یحییٰ صاحب، سیکریٹری محمد علی صاحب، جوائنٹ سیکریٹری جناب تاظہور صاحب، اور میرے ریسپیکٹڈ سینئر ٹیچر جناب کرن سر، respected lecturers, respected teachers, respected parents اور میرے dear student، السلام علیکم، جلے اینڈ گڈ مارننگ. تو یہاں پہ عبال صاحب نے بتایا کہ ویلکم کے لیے، تو میں آپ لوگوں کو اس ڈے پہ خوش آمد کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں. اور سب سے بڑا دن ہے ہر ایک اکیڈمک ایئر کا، جو کہ بحیثیت پرنسپل، بحیثیت ایڈمنسٹریٹر اسکول کا جو ذمہ میرے اوپر تھے ایک سال کا، اس کو ہم نے اچھی طرح سے نبھایا، جس میں آپ لوگوں کی بچوں کا سیلیبس ٹائم ٹو ٹائم پہ کمپلیٹ ہوا، اور بچوں کی لائف سیکیورٹی اللہ کی فضل و کرم سے کوئی بھی کسی طرح کی جو انسیڈنٹ جو ہے ہمارے پاس پیش نہیں آیا. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور صحیح سلامت جو ہے بچے جو ہے خوشی کے ساتھ نئے کلاس میں جائیں گے. یہ ہم سب کے لیے، آپ پیرنٹس، بورڈ آف مینجمنٹ اور ہمارے اسکول جس کی میری ٹیم جس کو میں خود لیڈ کر رہا ہوں، ان سب کے لیے مبارک کی بات ہے کہ آج ہم نے ہمارے لیے ایک نتائج دے آیا، جو آپ خوشی کے ساتھ جو اپنے بچوں کا پروگرس دیکھنے اس انسٹیٹیوشن میں آئے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بچوں نے بھی اچھے پرفارمنس کیے ہوں گے، مگر کوئی گریڈ ہوگا فرسٹ سیکنڈ، ان پہ زیادہ آپ لوگ سٹریس دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کسی طرح سے کوئی فرسٹ آتا ہے، کوئی سیکنڈ آتا ہے، یہ ایک دستور تھا، تو اس دستور کو بھی ہم برقرار رکھا ہے. مگر جو ہے گریڈ سسٹم کا ابھی اس زمانے میں، جو اس ایجوکیشن سسٹم میں کوئی ویلیو نہیں ہے. مگر لہٰذا آپ لوگ اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، اور جتنا آپ کا بچہ جتنا آپ لوگوں کے لیے پیارا ہے، اتنا ہمارے کو بھی پیارا ہے. تو ہم نے بھی آپ کے بچوں کے لیے جتنا ہمارے سے، ہمارے ٹیچرز ہو، ہمارے مینجمنٹ ہو، ہر کسی نے آپ کی بچوں کے ہر طرح کے خیال رکھے ہیں. لہٰذا کہیں نہ کہیں پہ کسی کی کمیاں آ بھی جاتے ہیں، اگر آئے ہوں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس کمی کو ہم نیکسٹ ٹائم اچھی طرح سے سدھاریں گے. اور کچھ کمیاں بھی رہ چکے ہوں گے، اس کے لیے ہم اپنے ٹیم سے بھی آپ لوگوں سے معذرت چاہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ آج جو ہے وقت کی کمی ہے، اور ایک چیز میں یہاں پہ اس موقع لیتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ڈیکس رزلٹ کے ساتھ ساتھ ہماری جو سر ویلی ایجوکیشنل پبلک سوسائٹی ہے، اس کی بائیلاز میں 3 ایئرس کی ٹینیور ہوتے ہیں. اور جو 3 ایئر ٹینیور رہا آپ کی ٹیم کا، جس میں ہمارے چیئرمین صاحب، وائس چیئرمین، سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ شاید اسکول کی ہسٹری میں یہ سب سے گولڈن پیریڈ رہا ہے. تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگوں کی ٹائم میں بحیثیت میں خود اسکول کا پرنسپل رہا، اور آپ کی نگرانی میں بہت ساری، چاہے وہ ڈیولپمنٹل ہو، چاہے اکیڈمک ہو، ہر چیز میں آپ لوگوں نے پروگرس کیا. اس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد ایک اناؤنسمنٹ ہے، اس دن چیئرمین صاحب نے بھی آپ کو یہ انوگریشن ڈے پہ بتایا، اور شاید پیرنٹس کے ساتھ ہمارا اور انٹریکشن نہیں ہوگا. تو ہمارے سب سے سینئر موسٹ ٹیچر جس نے اپنے لائف کو ڈیڈیکیٹ کیا اس انسٹیٹیوشنز کے لیے، وہ جناب کرن سر جو ہے، وہ آپ کی 30 نومبر کو ریٹائر ہو رہا ہے. یہ جہاں میرا 5 سال جو گزارا، وہ کرن سر کی بلیسنگ سے میرا سب کچھ شروع ہوتا تھا، اور کرن سر کی بلیسنگ سے ہی میرا دین ختم ہو جاتا تھا. اور کرن سر سے بہت کچھ جو ہے مجھے سیکھنے کو ملا،
اور انشاءاللہ الرحمن کرن سر جو آپ آفٹر ریٹائرمنٹ بھی آپ کو ہمارے سوسائٹی میں اس انسٹیٹیوشن میں آپ کی ضرورت ہے اور آپ اس انسٹیٹیوشن میں اپنا کنٹریبیوشن دیتے رہیں گے. اور وقت کی کمی ہے اسی لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم. السلام علیکم. جولے یہ میرا اس اسکول میں اب کچھ ہی دن ہے. 30 نومبر کو میں اسکول سے بڑی خوشی سے اپنی طرف سے میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں. میں نے مارچ کے مہینے میں اپنے چیئرمین صاحب سے کہا تھا, ریکویسٹ کیا تھا کہ مجھے آپ ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہو, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ سیشن آپ دے دیجئے, پھر ہم آگے دیکھیں گے. بات یہ تھی کہ میری کچھ صحت اس سال ٹھیک نہیں رہی, جس کی وجہ سے میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں. میرے زندگی کے 33 ایئرس جو تھے وہ اسی اسکول میں گزرے. اسکول میں میں نے بہت سا اتار چڑھاؤ دیکھا. میرے جو اسکول کے کولیگ جو ہیں, ٹیچر جو ہیں, سینئر موسٹ ٹیچر اب ہمارے اقبال سر جو آپ کے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں, انہوں نے بھی میرے ساتھ بہت ساتھ دیا. سب ٹیچروں نے ساتھ دیا. شاید میرے سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہوگی, کئی پیرنٹس سے میرا ہو گیا ہوگا کچھ. ویسے تو مجھ کو یاد نہیں کسی کے ساتھ میرا ایسا کوئی بات ہوئی ہو. اگر ہوا ہو تو آپ سب میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اس سے زیادہ میں کوئی زیادہ بات نہ کرتے ہوئے, بس آج کے جو رزلٹ, جو بچوں کا رزلٹ نکل رہا ہے, اس کے لیے سب پیرنٹس کو, سب بچوں کو اپنی طرف سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والا وقت بڑا بہت ہی بچوں کے لیے خاص کر کمپٹیشن کا مقابلہ ہے. اب تو یہاں پر ڈویژن مارکس اوپر سے چڑھ کر جا رہے ہیں. 100% مارکس وہ بھی کمپٹیشن میں اب آ گئے ہیں. تو آنے والا وقت بچوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے بڑا مقابلے والا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ پیرنٹس زیادہ تر اپنے بچوں کے اوپر زور دے دیجیے. اسکول میں بھی پڑھتے ہیں تو بچہ گھر میں بھی جا کر ان کو تھوڑا سا, اگر پیرنٹ تھوڑا سا بھی آدھا گھنٹہ بچے کے ساتھ لگے رہیں کہ آج اسکول میں کیا پڑھایا, کیا ہوم ورک دیا, اسی کو اگر ریپیٹ کیا جائے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بچے کو ٹیوشن کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں. اسکول میں ٹیچر اپنے بڑے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر ہیں, بڑے وہ ہوشیاری سے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اپنا بچہ سمجھ کر کرتے ہیں. ماں باپ کے پاس جو بچہ کچھ دیر کے لیتا ہے, باقی جو 6-7 گھنٹے وہ بچہ جو ہے اسکول میں ایک ٹیچر کے پاس رہتا ہے. تو اس کی لائف بنانے کے لیے ٹیچر کا بہت بڑا یوگدان رہتا ہے. کہ میں 30 نومبر سے اسکول سے رخصت ہو رہا ہوں, لیکن پھر بھی میں نے کہا جب کبھی میری ضرورت اسکول میں پڑے میں ہر وقت حاضر رہوں گا. انہی باتوں کے ساتھ کرتا ہوں. تھینک یو آپ. شکریہ. میں شروع کرنے جا رہا ہوں. تو اس سال ہمارا اکیڈمک سیشن جو ہے وہ بہت ہی فروٹفل رہا اور بہت ہی کامیاب کے ساتھ جو ہے پائے. تو ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہے اور رول کلاس نرسری میں 42 تھا, اور ایگزام میں جو ہے 42 بچے اپیئرڈ ہوئے, اور اس میں سے 42 کے 42 بچے جو ہے وہ پاس ہو گئے. اٹ مینس اس کلاس نے 100% رزلٹ دیا ہے. تو اس کے لیے میں ویری بگ کنگریچولیٹ کرتا ہوں ٹو دا کلاس ٹیچر, ٹو دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا پیرنٹس. سبھی کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. آؤٹ آف 42 اسٹوڈنٹس میں سے 5 نمبر آف اسٹوڈنٹس نے 3rd پوزیشن حاصل کیا ہے, اور 3 نمبر آف اسٹوڈنٹس نے 2nd پوزیشن حاصل کیا ہے, اور 3 نمبر آف اسٹوڈنٹس نے 1st پوزیشن حاصل کیا ہے. تو میں یہاں سے ان پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹس کا نام لوں گا, ساتھ میں ان کے پیرنٹس کے بھی نام آئیں گے. ہال میں تھوڑی جگہ کی کمی کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے وہ باہر رہے,
تو اس لیے اگر پیرنٹس یہاں پہ موجود ہیں حاضر ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اپنے بچے کا نام آتے ہی آپ یہاں پہ پرائز لینے کے لیے آ جائیں. تو اس پرائز کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ سب سے پہلے انوائٹ کروں گا ہمارے سینئر موسٹ لیڈی ٹیچر مسز بطول بانو کو کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو انعامات نواز کر ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور سر عباس سر آف غلام حسن. فرسٹ پوزیشن اس بچے نے 500 میں سے 500 مارکس حاصل کر کے فرسٹ پوزیشن حاصل کیا. 592 اور 98.56 اور اس کا سیکنڈ کے دوسرا نمبر 20 جو حاصل کر لیا مضبوط کا آج بھی کا فرسٹ پوزیشن جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. Second position 98.6%.
है। तो जनाब चेयरमैन नासिर साहब, वाइस चेयरमैन यहया साहब, सेक्रेटरी अली साहब, ज़हूर अहमद लोन साहब और हमारे प्रिंसिपल गुलाम मोहम्मद खान, वाइस प्रिंसिपल और यहाँ के डेडिकेटेड टीचर्स और प्यारे वालिदैन, अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीइंग ए पेरेंट, मैं सबसे पहले यहाँ के असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक़्त और इनके अंदर जो जितनी भी इनके अंदर जो इल्म की सलाहियत है वो इस एकेडमिक ईयर में हमारे बच्चों तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिसका हम अस्ताए दिल से आपका बहुत बहुत मशकूर और ममनून है, शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही मैं पेरेंट्स साहिबान से को भी ये मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों का साल का जो उनका जो रिज़ल्ट था वो आज अनाउंस हुआ। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, ये एक दस्तूर है। हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ये एक दस्तूर है, दस्तूर ही है। सबसे पहले हमें एक कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को एक बेहतरीन एक शहरी बनाने की, बेहतरीन एक इंसान बनाने की कोशिश करें, उसके अंदर एक अच्छी खूबियाँ उसमें डालने की कोशिश करें। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये तो ज़िंदगी का उतार चढ़ाव है, ये आते रहेंगे। पिछले साल कुछ और बच्चे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन थे, आज कुछ और बच्चे फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। इसमें हमें कोई इतने नर्वस होने की या उसमें कोई फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में मैं बोर्ड मैनेजमेंट के लिए को भी बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने जो 3 साल का जो टेन्योर था वो बखूबी यहाँ निभाया और हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली इस नस्ल के लिए एक ऐसी खूबसूरत ये जो बिल्डिंग जो तामीर की, उसके लिए हम इनका बहुत मशहूर ममनून है। ये अपना वक्त, कीमती वक्त से, आज किसी के पास कोई वक्त नहीं है, लेकिन ये अपने वक्त से निकाल कर यहाँ आके इस बिल्डिंग का और हमारे स्कूल के एकेडमिक हो चाहे दूसरे जो एक्टिविटीज़ हैं, इन सब के नज़रसानी करते हैं। इसके लिए भी हम चेयरमैन साहब और दीगर जो इसके जो ग्रुप मेम्बरान से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हासिल के लिए एक बेहतरीन एक जो होता है स्ट्रक्चर तो बनते रहता है, तो एकेडमिक में थोड़ी सी बहुत प्रिंसिपल साहब से भी मेरी गुजारिश है, आप भी अपने आने वाले वक्त में थोड़ी सी ये कर लीजिए। एकेडमिक में थोड़ी सी है, वो तो होता है, लेकिन टीचर को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो उस कमी को दूर करे, क्योंकि हर पेरेंट्स आपके पास नहीं आता है, कोई थोड़ा सा झिझक जाता है। किसी का तो बच्चा बोलता है कि नहीं आओ आप टीचर के पास, ये होता है। बच्चा बोलता है बिल्कुल भी मत आओ, अगर वो 100% गलत करता है, उसका टीचर अगर कुछ भी करता है वो बोलता है नहीं है जाओ टीचर के पास, क्योंकि उसको थोड़ी सी इन्फीरियरिटी थोड़ी सी महसूस होती है। तो आप असातिज़ा तो एक वालिद के मुतरादिफ होते हैं, तो आप अपनी कमियों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे और प्रिंसिपल साहब भी नजरसानी की करने की कोशिश करेंगे। और हम में भी एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत अच्छी तरह एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। तमाम प्राइवेट स्कूल का बेहतरीन जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो हमारे गुलाम सर है, ज़्यादा तहसीन के लायक हैं। इसकी पर्सनैलिटी और इस ये दिखने में थोड़े से बड़े शक्तिशाली हैं, डरावने से, लेकिन दिल के बहुत बेहतरीन इंसान है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह चलाते हैं। शुरू वैली स्कूल जो है वो थोड़ा सा डिम हो चुका था। मैं बीइंग पेरेंट, अब तो मेरा ये 7 ईयर्स है, तो वो थोड़ा सा डिम हो चुका था, शुरू वैली स्कूल डिम हो चुका था। लेकिन जनाब गुलाम मोहम्मद साहब आने के बाद और ये नासिर साहिबानी ने जो संभाला, तो ये स्कूल फिर से हमने ट्रैक पे बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट के टॉप स्कूल में ऊपर निकला। अब सब भी बखूबी इसको ये करते होंगे, जिसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे प्रिंसिपल साहब, क्योंकि ये 12 महीने हमारे बच्चों का और तमाम असातिज़ा कराम ऊपर इसके ऊपर नज़र रखते हैं। तो आखिर में मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Nasir Shabani sir, Chairman, Board of Management, Suruveli Public School, Principal साहब सुरवेली पब्लिक स्कूल के, और करण सिंह साहब, तमाम टीचर्स सुरवेली पब्लिक स्कूल के, पेरेंट्स,
dear students. Assalamu alaikum. मैं सबसे पहले उन तमाम पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करते हूँ कि जिनके बच्चों ने एक साल में जो इनका परफॉर्मेंस रहा है, जो स्कोर इन्होंने लिया है और जो पोजीशन हासिल किए हैं, मैं उन सबको 1980s में उसमें भी मैं हमारा जो एक टीम था, एक ग्रुप था जिन्होंने इस स्कूल की शुरुआत की थी, तो उस तब से यानी आप समझ लीजिए आज से 44 साल पहले 44 इयर्स पहले से इस स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे मालूम है कि उस वक्त यहाँ करगिल में एक प्राइवेट पब्लिक स्कूल की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि माना जाता है कि पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन अच्छी होती है और गवर्नमेंट स्कूलों में उतनी नहीं होती है। तो यहाँ बहुत डिमांड थी, बहुत सारे और पेरेंट्स भी चाहते थे, और इसलिए हम 8-10 लोगों ने जो पिछली बार भी यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, मेरे ख्याल में आप में से बहुत सारे उस प्रोग्राम में भी आए होंगे। नासिर शाहबानी साहब ने और करण सिंह साहब ने जो है डिटेल बता दिया था, सबको मालूम है, मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी ज़ाती तौर पर इस स्कूल के साथ मेरे जज्बात जुड़े हुए हैं, और School para cooperate base baca studi shoti da school chi parents na triangle yung bate parents na teacher na students being stakeholder the stakeholders sanke agar cooperation karte ho na the school ko badhiya chalegi. Ultimately management committees kunti role bati teacher ने kunti role play bati student la ko sudhar bhi kiya छान ultimately swing na ki parents आए या संदर्भ यांत्रा लोगा गिरिंग kita terus result saya yung na ya school ka si mamile kita yang सब जमा yung just को सब corporate budget को मैं जोड़ दीजिए यहाँ पर की कसमी तालमेल टीचर ना पेरेंट्स सभी हमेशा लूज करो छान ये है कि मतलब को जो भी स्कूल का जो सिस्टम होता है, इस स्कूल सिस्टम को दक्सा वक्त में बहुत आगे गया है। दक्सा में की एक्सपेक्टेशन मतलब काफ़ी खुश बच्चों को लेके कि हमारे बच्चे जो है क्या बनना चाहिए और क्या होना चाहिए, आगे जाकर वो कहाँ बच्चों को इस सोसाइटी में किस तरह का रोल प्ले करना है। दक्सा डिजिटल वर्ल्ड करे पूरा हर चीज़ को हमारा दक्सा मोबाइल ना लैपटॉप ना IT ना दे सोयों तो छाना वक्त नहीं हमको हालात को बदल छाना ज़रूरियात भी बदल जाता है, एजुकेशन का सिस्टम भी बदल जाता है, पढ़ाने का तरीका भी बदल जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ एक पेरेंट की हैसियत से भी और इस स्कूल के एक पुराने कारकुन की हैसियत से मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया कि ये पेरेंट्स है, तो मैं खुद ही आ गई। मैंने कहा मैं एज ए पेरेंट यहाँ आऊँगी और मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन अभी भी देना चाहूँगी स्कूल के लिए कि आप स्कूल की बेहतरी के लिए क्या करें। आपका मैनेजमेंट का और आप तमाम अपने प्रिंसिपल साहब का क्लासरूम की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ साइंस पढ़ाना हो तो लेबॉर्ट्री की ज़रूरत है, जहाँ पे बच्चों को आपने एक्सेल करना है। जो हेडमास्टर साहब प्रिंसिपल साहब है ये खुद जो है एक एजुकेशनिस्ट है। आप लोगों ने खुद ही बोला कि जिस तरीके से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, जैसे एकेडमिक्स चला रहे हैं या बाकी चीज़ें चला रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये पेरेंट्स की तरफ से प्रिंसिपल साहब का भी और उनके पूरे टीम का जितने भी यहाँ पे फैकल्टी जितने भी टीचर्स हैं, हर कोई जो है अपनी कॉम्पिटेंसी रखता है, हर कोई अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। तो मैं इन सबको शुक्रिया अदा करती हूँ ऐसे पेरेंट्स के और वैसे एक सिटीजन के इस इलाके के इस डिस्ट्रिक्ट के एक सीनियर सिटीजन के हिसाब से भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ और मैं उनकी
एक्सपीरियंस है कि एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए, तो मैं अभी अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ और मैं उम्मीद रखती हूँ और मैं आपको शायद यकीन भी देने की मैं जिम्मेदारी के साथ कि इसमें से जितने भी पेरेंट्स जो इंटरेस्टेड है यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए, चाहे वो अपने मशवरे से आपको स्ट्रेंथ करें, चाहे वो अपने बाकी चीज़ों से आपको स्ट्रेंथ करें, मुझे उम्मीद है कि ये सारे पेरेंट्स भी आपके साथ, मैनेजमेंट के साथ और प्रिंसिपल साहब के साथ जो भी ये आगे भी कोऑर्डिनेशन को अपना कंटिन्यू रखेंगे और हम ये कोशिश करेंगे पेरेंट्स, टीचर सब में इस स्कूल का नहीं बल्कि जिससे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते हैं, इतने कॉन्टेक्ट्स हैं कि वो सबको इसके लिए ट्रेनिंग देते हैं ताकि बच्चों को पूरा तैयार कर देते हैं कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर नीट के एग्ज़ाम्स को कैसे फेस करना है बच्चों को। तो इन सब चीज़ों से हमें फ़ायदा लेना चाहिए और हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप क्योंकि स्कूल का मैनेजमेंट आप खुद कर रहे हैं, तो आप इसको भी प्रायोरिटी पर यहाँ के बच्चों को जो है प्रायोरिटी पर इन सब जो कैरियर काउंसलिंग का जो प्रोग्राम्स हैं या बाकी चीज़ें हैं ये बच्चों को आप पूरी प्रायोरिटी पर करेंगे और इस स्कूल को और भी आगे ले जाने के लिए आप और आपकी टीम जो है इसको मेहनत करेंगे। और मैं आखिर में फिर एक बार कहूँगी कि हम सब आपके साथ हैं और जिस तरह का भी आपको कंट्रीब्यूशन और जिस तरह की भी आपको मदद की ज़रूरत है हम इंशाअल्लाह आपकी ज़रूर करेंगे। क़ाल इमाम अली अलैहिस्सलाम लिसानुल आक़िल वरा क़ल्बिही व क़ल्बुल अहमक़ वरा लिसानिही। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल साहब से कहूँगा कि सारे टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दें कि जो प्रोग्रेस कार्ड ये दे रहे हैं इसके वजह से जितना डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट हो रहा है, हमने पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्शन दिया था कि जब तक मीटिंग मुकम्मल नहीं होता है किसी भी क्लास का प्रोग्रेस कार्ड दिया नहीं जाए। पेरेंट्स मीट मैं छोटी सी हदीस में आपके सामने बयान कर रहा हूँ, वो इसलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं लिसानुल आक़िल वरा क़ल्बिही, एक अक्लमंद इंसान का ज़बान जो है वो उसके क़ल्ब के, उसके दिल के पीछे होता है, और मुझ जैसे अहमक़ आदमी का व लिसानुल अहमक़ वरा क़ल्बिही, और एक अहमक़ इंसान का जो ज़बान होता है वो उसके दिल के आगे होता है, यानी वो पहले बोलता है और उसके बाद वो सोचता है कि मैंने क्या बोला। लेकिन अक्लमंद आदमी जो होगा उसका ज़बान जो है उसके दिल के पीछे होता है, यानी वो पहले सोचता है, समझता है क्या ये बात बोलना ठीक है कि नहीं, और उसके बाद अगर उसको ऐसा लगता है कि इस बात में फ़ायदा है तो वो लोगों के सामने वो बात को रखता है। और यही चीज़ अगर हमारे समझ में आ जाए तो किसी भी माशरे में जिस तरह का फितना, जिस तरह का फसाद और जिस तरह का चुगली, जिस तरह का ग़ीबत पूरे माशरे में चलता है, अगर सिर्फ इसी हदीस को मेयार बनाए तो हम इस फसाद से, इस परेशानी से, इस बुराई से, इस गुनाह से हम बच सकते हैं। जैसे पहले के सारे मुकर्रिरीन ने कहा, 2018 में मुझे बहैसियत सेक्रेटरी आप लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी, 3 साल तक हमने अपनी तरफ से जितना कोशिश करना था किया। पिछला वाला जो स्कूल था हमारा पुराना स्कूल, उसमें फर्नीचर्स, उसमें टॉयलेट सिस्टम्स, बहुत ज़्यादा मसाइल थे, छोटे बच्चों की क्लास में बहुत ज़्यादा मसाइल थे, कोई फर्नीचर नहीं था, यहाँ तक कि कारपेटिंग भी नहीं था। जब हमने पहली बार 2018 में मैं और अली साहब ने कारपेट उठाना चाहा तो कम से कम 15 लोग लगे उस कारपेट को उठाने के लिए। कारपेट का वजन नहीं था, लेकिन उस कारपेट में इतना धूल था कि वो 15 लोगों से उठाया नहीं जा रहा था। और ये हकीकत बोल रहा हूँ मैं, न पिछले किसी को गलत कह रहा हूँ, ना हम ये कह रहे हैं कि हमने कुछ बड़ा काम कर दिया। जितने भी वहाँ पर डेस्क थे, पहले ही साल में हमने तकरीबन 9 लाख रुपया खर्चा करके स्टूडेंट्स के सारे डेस्क को हमने चेंज किया, क्योंकि एक स्टूडेंट को अगर दूसरे लाइन में जाना है तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उसको एक डेस्क के ऊपर चढ़ना था, तब वो जाके दूसरे डेस्क पर पहुंचता। बड़े बड़े डेस्क रखे हुए थे, टूटे फूटे डेस्क रखे हुए थे, तो जितना हो सके हमने कोशिश वहाँ पर किया। और 2018 से ही सबसे पहला जो शुरुआत हमारे करगिल में हुआ प्री प्राइमरी टीचर्स की ट्रेनिंग का,
उस ट्रेनिंग का सिलसिला हमने शुरू किया और आपको मैं बता रहा हूँ 2024 में भी बहुत सारे स्कूल्स कहते हैं कि हम टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम टीचर्स के ऊपर खर्चा करते हैं, वो 1 साल 2 साल बैठते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, कभी वो गवर्नमेंट की नौकरी लग जाती है उनको, कभी किसी और वजह से हमारा स्कूल छोड़ देते हैं। जितना हम खर्चा करते हैं उस खर्चे का फायदा हमें नहीं मिलता है। मेरा ये मानना है कि अगर हमने किसी के ट्रेनिंग के ऊपर, किसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर, किसी की सलाहियत को उभारने के लिए अगर हमने खर्च किया, तो जरूरी नहीं है कि उसकी सलाहियत सिर्फ हमारे काम में, उसकी सलाहियत किसी के भी काम में आ सकती है। ऐसे बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं जिसने यहाँ से ट्रेनिंग लिया, हमने उनको हैदराबाद भेजा और पिछले साल इतना कंस्ट्रक्शन के बावजूद भी आपको ये बता दें, हमने 5 टीचरों को 2 महीने के लिए फिर हैदराबाद, असिस्टेंट टीचर्स को भी हमने हैदराबाद। हालांकि फाइनेंस का, पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत भी थी, ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन हमने टीचर के ट्रेनिंग के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम ये कहेंगे कि टीचर हमारे पास बैठता नहीं, हुजूर है, तो हम कभी भी टीचर को ट्रेन नहीं करते। और जब हम कभी भी टीचर को ट्रेन नहीं कर पाएंगे तो हमारे स्कूल में कोई भी ट्रेन टीचर नहीं है। तो ट्रेन टीचर ना होने से बेहतर ये है कि ये रिस्क हम उठा लें, भले ही 2 साल के लिए वो हमारे साथ रहे, 3 साल के लिए हमारे साथ रहे। अगर वो हमारे साथ नहीं रहता है तो इतना मुझे यकीन है कि कल वो अपने बच्चे की तरबियत करेगा तो दूसरे किसी औरत से बेहतर तरीके से तरबियत करेगा, दूसरे किसी टीचर से बेहतर तरीके से तरबियत करेगा। ये जो सोच है कि हर चीज हमारे लिए ही होना चाहिए, हमने किया है तो उसका फायदा सिर्फ हमें ही मिलना चाहिए, ये खुदगर्ज लोगों की निशानी है, उनकी निशानी नहीं है जो पैगंबर, आइम्मा अहले बैत और जो दीन के बुजुर्ग हैं उनकी तालीमात को अपने नजर में रखते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि हमने किया है तो हमें ही फायदा हो, हम दूसरे को क्यों फायदा पहुंचाना चाहिए। खैर, इस टीचर ट्रेनिंग का सिलसिला इस साल भी है, इंशाल्लाह इस साल फिर हम 5 से 6 टीचर्स को इस बार हम बेंगलोर भेज रहे हैं मुसलसल 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार सिर्फ हमारे ऊपर किराए का खर्चा है, रहने का, खाने पीने का खर्चा जो है इंशाल्लाह हमारे कुछ दोस्त व अहबाब है वो उसका इंतजाम कर रहे हैं। पिछले दिनों में आपने इनॉग्रेशन का प्रोग्राम देखा। खैर, सोशल मीडिया के ऊपर मुझे बहुत गालियां पड़ी, कहा कि ये अय्याम फातिमा का लिहाज नहीं किया गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि हमारे यहाँ अय्याम फातिमा जो है वो 2 महीना होता है, एक इस महीने में था, एक दूसरे महीने में था। मैंने ये भी देखा कि हमारे यहाँ दूसरे महीने में बड़े पैमाने के ऊपर अय्याम फातिमा का प्रोग्राम होता है। मैंने सारा कैलेंडर भी चेक किया, कैलेंडर चेक करने के बाद नतीजा ये निकला कि या तो 17 तारीख को दिन शुरू हो सकता है या तो 16 तारीख को दिन शुरू हो सकता है। फिर मैंने एहतियात किया, चलो सनीचर का दिन करेंगे, क्योंकि मंडे का दिन जो है वो वफात या शहादत का दिन है, उस लिहाज से भी हमने सनीचर को भी किया, पूरी तरह से एक इस्लामिक प्रोग्राम किया। लेकिन अगर किसी को किसी में नुक्स निकालना हो, किसी को किसी में गलतियां निकालना हो, तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ से ज्यादा जो है मजम्मत हुआ, जिसका हम खैर मकदम करते हैं। इस स्कूल के ताल्लुक से आप सारे पेरेंट्स जानते हैं कि ये हमारा बिल्डिंग था। इनॉग्रेशन में हमने सारे पेरेंट्स को ओपन इन्विटेशन दिया था। 300 पेरेंट्स का हमने तकरीबन रिफ्रेशमेंट और खाने वगैरह का इंतजाम किया था। मैंने अली सर को और प्रिंसिपल सर को पूछा कि भाई क्यों नहीं आए, पेरेंट्स बहुत कम आए, तो उन्होंने कहा उनको ये डर था कि कहीं शाबानी फिर पैसा नहीं मांगे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज भी मैं आपसे पैसा मांगने वाला नहीं हूँ, आप बेफिक्र रहें। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले साल आप लोगों को हमने कहा कि हर एक स्टूडेंट के ऊपर आप 1500 रुपया कंट्रीब्यूट करें, तो हर एक पेरेंट ने वो 1500 रुपया कंट्रीब्यूट किया। और आपके लिए 1500 था, लेकिन स्कूल के लिए तकरीबन 14 लाख रुपए जमा हो गए। तो हम आप सब पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम आपका ताउन चाहते हैं। आप इस दार खैर के अंदर, इस सदका जारिया के अंदर आप शामिल हो, हमारा मकसद ये था। ऐसा नहीं है कि जराए दूसरे नहीं थे, हम जराए ढूंढ भी सकते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ढूंढा। इस स्कूल के 44 साल की तारीख में, 44 इयर्स की तारीख में, अगर आप नीचे जाके देखेंगे हमने पैसा नहीं लिखा है,
किन किन लोगों ने स्कूल में ताउन किया, चाहे वो माली तौर पर ताउन किया हो, चाहे वो दूसरे तरीके से ताउन किया हो, हमने सभी का नाम नीचे बोर्ड के ऊपर हमने लिखा है। हमारे फॉर्मर MP हसन खान साहब ने इस स्कूल को 10 लाख दिया था। स्कूल में पहुंचते पहुंचते आपको पता है कि वो सिस्टम क्या होता है MP का और CDF का, वो 8 लाख पहुंचा, लेकिन किसी ने ये रिकॉग्नाइज नहीं किया कि हसन खान साहब ने वो पैसा हमें दिया। हमने उनका नाम दिया, उनका हमने मोमेंटो रखा यहाँ पर, फेरोज खान साहब आए, वो मोमेंटो को रिसीव किया। तो जिन जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया स्कूल में, पेरेंट्स का हम सभी का नाम नहीं लिख सकते थे, मैनेजमेंट बॉडी का नाम आया है, तो कोई पेरेंट ये ना कहे कि मैंने 1,500 रुपये दिया था, तो वो 1,500 रुपये के बदले में मेरा नाम बोर्ड पर नहीं है। तो उसके लिए अलग से एक दीवार का बोर्ड बनाना लाजमी होगा। जिस किसी ने 5,000 से ज्यादा डोनेशन दिया, बहुत सारे पेरेंट्स हैं हमारे, 1,500 के अलावा किसी ने 20,000 दिया, किसी ने 25,000 रुपये दिए, किसी ने 20,000 रुपये दिए, उनका नाम भी हमने उस बोर्ड के ऊपर शामिल किया है। क्योंकि बदकिस्मती से हमारे माशरे में हम एप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं, हम रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं। कोई अगर कुछ करे, कम से कम उसके उस काम को लोगों के सामने उबारना जरूरी है, लोगों के सामने पहचानवाना जरूरी है। अगर ये चीज हमारे माशरे से खत्म हो जाएगा तो हर इंसान के जहन में एक तस्वुर पैदा होगा कि इस मुआशरे में कुछ भी करो कोई फायदा नहीं है, कोई उसको पहचानता नहीं है, कोई उसकी तारीफ नहीं करता है, कोई उसकी अप्रिसिएशन नहीं होती है, तो हम क्यों काम करें? हर कोई नहीं होता है कि खुदा को हाजिर और नाजिर रख के बस अपने ही दिल में सुकून हासिल करना, अपने ही दिल में अपने आप को खुदा से इतना मुकर्रब बंदा शायद कोई हो। हर इंसान चाहता है कि अगर वो किसी न किसी तरह से माशरे में किसी भी काम के लिए अगर वो कंट्रीब्यूट करता है, ताउन करता है, तो कम से कम उसका नाम ना लिया जाए, तो कम से कम उसका एहतराम रहे। इसीलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि जितने भी हमारे डोनर्स हैं, उन सारे डोनर्स का नाम हमने दिया है। इस बार मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन का हिसाब दे रहा हूँ, और ये हिसाब व किताब हमारे हाजी अली सर के पास हर वक्त मौजूद रहता है। इस स्कूल के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो चेक के जरिए होता है, बैंक के स्टेटमेंट है आपको, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे डोनर्स हैं। उन डोनर्स ने बहुत तरीके से हमारी मदद किया है। कॉन्ट्रैक्टर्स है यहाँ पर बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बड़े दुकानदार हैं, जिन्होंने कम से कम हमें एक क्रेडिट पीरियड दिया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इंशाल्लाह 15 दिसंबर तक जितना भी हमारे ऊपर लायबिलिटी है वो लायबिलिटी हम मुकम्मल करेंगे। 44 साल के इस स्कूल के तारीख में मैं और मेरे मैनेजमेंट ने अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से 60 लाख रुपीस का डोनेशन जमा किया है। 60 लाख रुपए 44 साल की तारीख में सिर्फ और सिर्फ हसन खान साहब का 8 लाख रुपया है। मुंशी सादिक साहब ने यहाँ पर एक टॉयलेट के लिए कुछ फंडिंग दिया था। पिछला एक नॉमिनेटेड काउंसलर ने 40,000 रुपया दिया था, लेकिन इस साल एक नॉमिनेटेड काउंसलर ने 5 लाख रुपया दिया है। तो हमारे काफी शमीम की वाइफ जो है नॉमिनेटेड काउंसलर शकर चिकन से, उन्होंने 5 लाख रुपया इस साल के बजट में रखा है। और उस सिलसिले में हम कंप्यूटर लैब जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। उसका गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख आता है, तो आपको भी पता है कि कितना मुकम्मल होगा। लेबॉर्ट्री में हमारे एक दोस्त ने 2.5 लाख रुपए का डोनेशन दिया था, तो आपके नीचे लेबॉर्ट्री में पूरा का पूरा इक्विपमेंट जो है वो वहाँ पर लाया हुआ है। और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ 40 लाख रुपया लेने के लिए, तो जिसकी वजह से किसी न किसी तरह से हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल किया। जो भी आपका रेवेन्यू आया, कल ही मुझे कोई बता रहा था कि किसी पुराने मैनेजमेंट मेंबर ने कहा कि हमने इस स्कूल के लिए FD बनाया था, शाबानी ने आके उस FD को खत्म कर दिया। मैं पूछता हूं कि वो FD किस लिए बनाया था, वजह क्या था, उसका रीजन क्या था। 2018 में जब मैं आया स्कूल के अंदर, जब मैंने हिसाब किताब पिछले वाले सेक्रेटरी से लिया, उस FD की वैल्यू बैंक में 52 लाख था। मैं आपके सामने हर चीज हिसाब किताब सामने रखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये न मेरा स्कूल है न आपका स्कूल है, ये हम सब का स्कूल है और हर कोई इसके अंदर मालिक है, हर कोई इसके अंदर स्टेक होल्डर है। 2021 में 20 में जब हमें बस की जरूरत पड़ी, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर आया, तब तक उस FD की वैल्यू जो है वो 57 लाख हो गया था, 57 लाख।
ہم نے اس ایف ڈی کے اگینسٹ میں لون نکال کے ہم نے 2 بس خریدے. ایف ڈی کے اگینسٹ میں کیوں لون نکالا؟ کیونکہ بس کا لون جو ہے وہ ہمیں اگر ایسے ہی نکالتے ہیں تو 10.5% انٹرسٹ ہوتا ہے. ایف ڈی کے اگینسٹ میں نکالتے ہیں تو ہمیں صرف 5.5% انٹرسٹ ہے, کیونکہ 5% ایف ڈی کا انٹرسٹ ہوتا ہے. وہ انٹرسٹ ہمیں برابر ملتا تھا, تو ہمیں صرف 5.5% میں 2 بس ہم نے لون لیا, جس میں سے 90% ہم نے لون لیا, 10% ہم نے اپنے اسکول سے وہاں پر ڈالا. 2 بس کی قیمت تقریباً رجسٹریشن وغیرہ سب ملا کے 45 لاکھ روپیہ, 57 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ایف ڈی تھا, 45 لاکھ کے 2 بس آپ کے پاس. اس لون کو چکتا کرتے کرتے جب 2021 آیا تو ہمارے 1 بس کا لون تھوڑا سا زیادہ باقی تھا. ہم نے جب وہ لون ایف ڈی سے توڑا تو ہمارے پاس ایف ڈی میں سے 33 لاکھ روپے کیش, 33 لاکھ روپے ہمارے ہاتھ میں آیا. مجھے مینجمنٹ لوگ کہہ رہے ہیں, دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دماغ خراب ہے, آپ بول رہے ہو بیسمنٹ پلس 5 بلڈنگ بنانا ہے, ہاتھ میں صرف 33 لاکھ روپے ہے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اس سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن شاید میرے جیسا احمق کوئی نہیں تھا. میں نے اس سمندر میں چھلانگ لگایا. میں نے کہا کہ ہم توکل کریں گے, دیکھیں گے اس 33 لاکھ میں انشاءاللہ اتنا برکت آئے گا کہ ہم اس بلڈنگ کو کسی نہ کسی طرح سے 2-3 سال کے عرصے میں مکمل کر لیں گے. ہم نے سلسلہ شروع کیا, کووڈ میں ہم نے سلسلہ شروع کیا. جب سارے اسکول بند تھے, آپ کے بچے آپ کے گھر میں تھے, تو آپ کا گراؤنڈ جو ہے وہ پوری طرح سے بجڑی اور ریتا سے بھرا ہوا تھا. ہم نے یہاں اینٹا بنا کے تیار رکھا کہ جیسے ہی کووڈ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ہم سلسلہ شروع کریں گے. 2021 کے اواخر میں جب ہم اس کا سلسلہ شروع کرنے والے تھے, مجھے بھی یقین نہیں تھا. اس سے پہلے ہم نے اپنا طریقہ اپنایا. آپ کے سی سی کرگل سے لے کر ایم سی آفیسر کے لیے ہم نے ایک دعوت کا اہتمام کیا. 6 ویرائٹی کا ہم نے اس میں ڈشز کھلایا ان کو. میڈم کنیز پتہ ہے تو اسکول کے بارے میں گفتگو کم ہوئی. 45 منٹ تو یہ گفتگو میں چلے گئی کہ اس کو کیا کہتے ہیں, یہ کیسے بنتا ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کا انگریڈینٹ کیا ہے. اسی سلسلے میں رہا. آخر میں ہمارے سی سی فیروز خان صاحب نے کہا کہ بھائی اس دعوت کا مقصد کیا ہے. تب آپ کو پتا ہے پرانا بلڈنگ تھا, پیرنٹس پرانے. میں نے کہا جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہیں وہ بلڈنگ کبھی بھی گر سکتی ہے, یہ ہمارے بچوں کی جان کے لیے خطرہ تھا. گزرنے کا راستہ صرف یہاں سے تھا, یہاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ لائبریری بن رہا تھا. یہ ریکارڈ میں نہیں ہے, میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے ڈسٹرکٹ لائبریرین ظہور صاحب کا. اگر انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا ہوتا, اگر یہ اس طرح کے فسفن بن گئے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پڑوس میں کوئی نیا گھر بناتا ہے تو سامنے والے کے لیے پریشانی شروع ہوتا ہے, وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن انہوں نے ہمارا تعاون کیا, ہم نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا, کیونکہ چاہے ڈسٹرکٹ لائبریری ہو, چاہے یہ اسکول ہو, یہ قوم کا سرمایہ ہے. یہ کسی ذاتی جو ہے وہ ملکیت نہیں ہے, یہ کرگل کے قوم کا سرمایہ ہے. اور یہ دونوں سرمایہ جتنا ترقی کرے گا کرگل کے قوم ترقی کرے گا. الحمدللہ جتنا بھی ایشوز تھے ہمارا, ٹیڑھے میڑھے بلڈنگ آپ سب کو پتا ہے, ایک بلڈنگ یہاں پر ہوتا تھا, ایک بلڈنگ وہاں پر ہوتا تھا, گراؤنڈ میں بچوں کے لیے دوڑنے کا جگہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا تھا. ان سارے سلسلے کو ٹھیک کر کے ہم نے تعمیر شروع کیا, کیونکہ یہاں انہوں نے اپنی بلڈنگ گرایا تھا, ایک دیوار اس کے ساتھ تھا, وہ دیوار نکل گیا. انڈسٹریز والوں نے اپنا کام شروع کیا تو وہ دیوار انڈسٹریز کے ساتھ جڑا ہوا تھا, وہ دیوار گر گیا. تو ہم 2 کھلے ہوئے دیواروں کے بیچ میں 3 کمرے میں یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے توکل کر دیا, اس بلڈنگ کو ہم نے گرایا. ہم نے اس بلڈنگ کا اسٹرکچرل انجینئر کو جو 3.5 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں, کشمیر کے بہت ہی مانے ہوئے کنسلٹنٹ ہے, ان سے ہم نے اس کا ڈیزائن لیا. اور جب آپ اچھا کرنے جاتے ہو, توکل کرتے ہو, خلوص کے ساتھ آپ کام کرتے ہو, تو پھر پوری دنیا جو ہے, قدرت جو ہے وہ آپ کا ساتھ دینا شروع کرتا ہے. اس کنسلٹنٹ نے جس کی فیس 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپے تھا, انہوں نے صرف 70,000 روپے ہم سے لیا, کیونکہ ہمارے جو اسسٹنٹ ہیں وہ محنت کریں گے, کام کریں گے, کاغذ بنائیں گے. اور دوسری بات ہے سب سے امپورٹنٹ ہے ان کو اسٹیمپ لگا کے دستخط کرنا, وہ سب سے اہم بات ہوتا ہے اسٹرکچرل انجینئر کا, اور اسی کی قیمت ہوتی ہے. ڈرائنگ اور ڈیزائن سے زیادہ وہ اسٹیمپ. یہاں وہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ جو میں نے کرشر سٹون والے ہیں انہوں نے ہمیں کرشر کی بجری دی, ریتا والوں نے ریتا فری میں دیا, تو اس طرح سے ڈونیشن دینے والے بھی کافی تھے. تو 2022 میں جب ہم نے یہ شروع کیا تھا تب ہمارا خرچہ
8,01,380 रुपया था। उसके बाद 2023 में क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर बन रहा था, हमारा बिल्डिंग बन रहा था, उस वक्त हमारा 68,68,912 रुपया हमारा खर्चा रहा। 2024 में हमारा खर्चा रहा 22,81,825 रुपया। अब तो इससे हमारा खर्चा पूरा हुआ 99,52,117 रुपया। अभी हमारे ऊपर लायबिलिटी जो है, आप घबराना नहीं, पैसा आपसे नहीं मांगेंगे, आप परेशान नहीं होना। अभी हमारे ऊपर जो लायबिलिटी है, हम 15 दिसंबर तक ये लायबिलिटी सारे के सारे खत्म करेंगे, वो है 62,87,976 रुपये, और जिसमें से 40 लाख एक ऑर्गेनाइजेशन से आया है, और हमारा दूसरा जो इंशाल्लाह नया रेवेन्यू सोर्स है, उससे हमें ये पैसा मुकम्मल हो जाएगा। चाहे आगे हम रहे या न रहे, लेकिन आने वाले मैनेजमेंट के गर्दन पर हम कोई बोझ नहीं रखेंगे और उसकी हम पूरी तरह से जिम्मेदारी। तो अभी तक इस स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे इक्विपमेंट्स वगैरह, इसमें एक आध हिसाब कम होगा क्योंकि कुछ बिल्स अभी हमारे पास आए नहीं है, तो ये 1,62,40,093 रुपया बताता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अंदर 7-8 लाख का और है, तो तकरीबन आपका ये बिल्डिंग बेसमेंट प्लस 5 जो है वो मुकम्मल हुआ है 1,70,00,000। और 1,70,00,000 में इस तरह के क्वालिटी का स्ट्रक्चर मुकम्मल होना मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिल्डिंग बनाना मेरे हिसाब से इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आसान काम है। आप अपना वक्त दे दीजिए, थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा प्लानिंग करें, थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी बनाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जो है वो मुकम्मल हो जाता है। अब चैलेंज जो है वो ये है कि इस बिल्डिंग का यूटिलाइजेशन, हम इस बिल्डिंग को कितना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे बच्चों के फ़ायदे में। और कल इंशाल्लाह 25 नवंबर को हमारा जो नया क्लास है 9, 10, 11, 12 वो इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहा है। और इस बिल्डिंग के अंदर मैं आपसे गुजारिश करूँगा, बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, और आप चाहे आप पढ़े लिखे ना भी हो, कम से कम खुदा ने वो अक्ल और विजडम दिया है, आप लेबोरेटरी से लेकर क्लासों में थोड़ा सा चक्कर लगाए, देखें, कुछ नहीं है तो छत पर जाके करगिल की खूबसूरती देखें। क्योंकि मेरे एक दोस्त है खालू साहब, वो कहता है कि ये जो टेरेस है वो बहुत ही अच्छा है, मुझे एक ओपन स्टूडियो की ज़रूरत होती थी जहाँ से पूरा करगिल दिखाई दे। तो वो भी गुजारिश कर रहा है कि अगर मुझे कभी कभी ज़रूरत पड़े कोई इंटरव्यू के लिए तो मेहरबानी करके इजाज़त दे दे। करगिल के अंदर जितने भी बिल्डिंग तामीर हुए हैं, मैं किसी से मुकाबला नहीं करना चाहता हूँ, हम तो चाहते हैं कि जितने ऊंचे बिल्डिंग बने वो बेहतर है, उसी के साथ साथ ऊंचा सोच भी बने लोगों का। करगिल के अंदर फिट के हिसाब से, रनिंग फिट के हिसाब से ये करगिल का सबसे ऊंचा बिल्डिंग आप इसको मान सकते हैं।